16واں سبق ہے آج کا یہ۔ اس سے پہلے 15 لیسن ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں مذکر کی جمع، یعنی عاقل مذکر کی جمع، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر عاقل مذکر کی، غیر عاقل مؤنث کی جمع، ٹھیک ہے، نہیں غیر عاقل کی جمع، ایک عاقل کی جمع اور ایک غیر عاقل کی جمع، ٹھیک ہے۔ تو عاقل کی جو جمع آتی ہے وہ ایز اے پلورل ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو غیر عقل والی چیزوں کی جو جمع ہوتی ہے وہ ایز اے سنگولر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بس یہی ایک نئی بات ہے۔ غیر عاقل یعنی کیا کہتے ہیں غیر عقل والی چیزوں کا جو نام ہے اس کی جمع اگر ہو تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز اے واحد مؤنث، ٹھیک ہے، سنگولر، ایز اے سنگولر فیمینین ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ لائک دیکھے الاقلام، یہ قلم کی جمع ہے۔ قلم کیا ہے؟ غیر عقل والی چیز ہے، ٹھیک ہے، غیر عقل والی چیز ہے قلم، غیر عقل والی چیزوں کا نام ہے اور اس کی جمع ہے، تو اسے ٹریٹ کیا جائے گا واحد مؤنث کے طور پہ، ٹھیک ہے، سنگولر فیمینین کے طور پہ اسے ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اگرچہ جمع ہے مگر اس کی طرف ہونا کیا چاہیے تھا، ہا اولائی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے ابھی بتایا کہ یہ واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ حاضی کا استعمال ہوگا، ہا اولائی کا استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہیں پہ اگر ولدن کی جمع اولادن ہو جائے گا جو عاقل کی جمع ہے، عقل والے کی جمع ہے نا، تو وہاں پہ ہا اولائی الاولادو کہیں گے، یہ فرق ہے۔ عاقل کی جمع تو ایز اے پلورل اسے ہم ٹریٹ کریں گے، اور غیر عاقل کی جو جمع ہے اسے ہم سنگولر فیمینین کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ولدن کی جمع ولدن کی جمع اولادن، یہ ولد کے معنی لڑکا، یہ کیا ہے؟ عاقل ہے، عقل والی چیز ہے، ٹھیک ہے، عقل والوں کی جمع ہے، اسے ہم ایز اے پلورل ہا اولائی کے طور پر ٹریٹ کریں گے۔ لیکن قلم کی جمع اقلام، یہ نان انٹیلیجنٹ تھنگ ہے نا، تو اسے ہم واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، ایز اے سنگولر فیمینین ٹریٹ کریں گے، اس کے ساتھ ہم ہا اولائی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے الدرس السادس عشرہ، 16واں سبق، المدرس، ٹیچر کہتا ہے لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد یہ قلمیں کس کی ہیں؟ یہ قلمیں، قلم کی جمع اقلام، یہ قلمیں کس کی ہیں؟ محمد جواب دیتا ہے ہی علی یا استاذ، اے استاذ یہ میری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا لنا تو ہوتا ہماری، لی ہے تو میری ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہی علی، یہاں پہ بھی دیکھیں ہی استعمال کیا، واحد مؤنث استعمال کیا، کیونکہ یہ اقلام جو ہے غیر عقل والا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے۔ پھر مدرس کہتا ہے المدرس ہی جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے، وہذہ الکتب الجدیدۃ اہی لک، اور یہ نئی کتابیں کیا تمہاری ہیں؟ اور یہ نئی کتابیں کیا تمہاری ہیں؟ یہاں دیکھیں کتابن کی جمع الکتب، یہ کیا ہے؟ غیر عقل والا نام ہے، ٹھیک ہے، نان انٹیلیجنٹ تھنگ ہے، اس کی جمع ہے، تو یہاں پہ ہم الجدیدہ استعمال کیا، اس کا جو صفت ہے ایڈجیکٹو ہے الجدیدۃ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ انٹیلیجنٹ تھنگ ہوتا تو یہاں پہ ہم الجدد استعمال کرتے ہیں، الجدیدۃ نہیں۔ الجدیدۃ یہ واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث کا استعمال ہم نے اس لیے کیا کیونکہ یہ غیر عقل والی چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے، اور غیر عقل والی چیزوں کا جو نام ہوتا ہے اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز اے سنگولر فیمینین، ٹھیک ہے۔ وہذہ الکتب الجدیدۃ اہی لک، اور یہ نئی کتابیں کیا تمہاری ہیں؟ سوال، جواب دیتا ہے محمد لا نہیں، ہی لحامد، وہ حامد کی ہے، وہ حامد کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مدرس کہتا ہے این دفاترکم یا اخوان، دیکھیں دفترن کی جمع دفاتر،
नोट बुक, ठीक है। तुम्हारी नोट बुक्स कहाँ है ए भाइयों। इखवतुन की जमा इखवानुन और अखुन की जमा इखवतुन और इखवानुन दोनों आती है, ठीक है। या हरफे निदा है और ये मुनादा है, ए भाइयों तुम्हारी नोटबुक कहाँ है। अली जवाब देता है कि हिया हुना अला हादल मक्तबी, वो यहाँ, हुना यहाँ, हिया वो, अला हादल मक्तबी वो यहाँ इस मेज पर है, हाजल मक्तबी, हाजा इसमें इशारा और ये मुशारुन ले, वो यहाँ इस मेज पर है, इस मेज के ऊपर है। देखिए आगे तमारीन, तमरीन की जमा। तअम्मल अमसिलतल आतिया, थिंक अबाउट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। अल मुफरद सिंगुलर, अल मुफरद क्या कहेंगे सिंगुलर, अल जम जमा, अल मुफरद सिंगुलर एंड अल जमा प्लूरल। देखिए हाजा तालिबुन जदीदुन, दिस इज अ न्यू स्टूडेंट, दिस इज अ न्यू स्टूडेंट हुआ मिन बेल्जिका, ठीक है। ही इज फ्रॉम बेल्जिका कंट्री नेम, ठीक है। ही इज फ्रॉम बेल्जिया। फिर उसी की जमा आएगी हा उलाई तुल्लाबुन जुदुदुन। यहाँ देखे ये जो है तुल्लाबुन तालिबुन की जमा है। तालिबुन क्या है, आकिल है, अक्ल वाला है ना। अक्ल वाले की जो जमा आएगी, ठीक है, तो उसके साथ हम हा उलाई इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी जो सिफत होगी जुदुदुन आएगी, ठीक है। हा उलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, ये नए तलबा हैं। हुम मिन बेल्जिका, दे आर फ्रॉम बेल्जियम, बेल्जिका बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम की अरबी है। फिर मुफरद में आ जाए, थर्ड लाइन में सिंगुलर में, हाजा किताबुन जदीदुन, दिस इज अ न्यू बुक, है ना। ये किताबुन क्या है, नॉन इंटेलिजेंट थिंग है, गैर आकिल चीज है, ठीक है। हाजा किताबुन जदीदुन, वाहिद में तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, वाहिद में सिंपल है। जमा में देखेंगे इसको, हाजा किताबुन जदीदुन, ये नई किताब है। हुआ मिन बेल्जिका, दैट इज फ्रॉम बेल्जियम, ठीक है। उसके बाद उसी की जमा देखें, चूंकि किताबुन गैर इंटेलिजेंट था, गैर आकिल है, उसकी जमा कुतुबुन, गैर आकिल की जमा कुतुबुन, ठीक है। तो मैंने बताया कि गैर आकिल की जो जमा होती है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है, उसे ट्रीट किया जाता है वाहिद मुअन्नस के तौर पे, ठीक है। यही वजह है कि हाजी ही इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ लगना क्या चाहिए था, हाँ उलाई लगना चाहिए था ना जमा के हिसाब से, मगर मैंने पहले बता दिया कि ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, वाहिद मुअन्नस के दर्जे में है, यही वजह है कि हाजी ही का इस्तेमाल किया। और यहाँ ये जो सिफत इसकी लाई ये भी वाहिद मुअन्नस है, जदीदतुन, ठीक है। गैर आकिल की जो जमा होगी तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए इसमें इशारा भी वाहिद मुअन्नस लाएंगे और जो सिफत एडजेक्टिव होगा वो भी वाहिद मुअन्नस लाएंगे, ठीक है। हादिही कुतुबुन जदीदुन, दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें हैं, ये नई किताबें हैं। हिया मिन बेल्जिका, हिया यहाँ इस्तेमाल करेंगे यहाँ भी, ठीक है। दे आर फ्रॉम बेल्जियम, ठीक है, ये बेल्जियम से है, बेल्जियम के है, ठीक है। हादिही कुतुबुन जदीदतुन, ये नई किताबें हैं, ये बेल्जियम, बेल्जियम से है या फिर बेल्जियम का है, ठीक है। ही इज मेड फ्रॉम बेल्जियम कह सकते हैं। एक मिनट, माइक ओपन नहीं ना। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। मैं ये जो बा नंबर में जो मिसाल दी हुई है जी कि हाजा किताबी, हाजा किताबुन हाँ जदीदुन, जी, ठीक है, ये किताबें नहीं है। ये तो किताबें नहीं, ये नई किताब है, वाहिद है ना, अल मुफरद। ये नई किताब, हाँ तो अल ये नई मुफरद, किताब, हाँ ये नई किताब है। हाँ, और उसके आगे लिखा हुआ मिन बिल बेल्जिका, बेल्जिका, ये बेल्जियम से है, हाँ ठीक है। अब इसके जी नीचे जी हाजी
हाज ही कुतुब किताब, कुतुबुन जदीदतुन, हाँ ये नई जी, किताबें, ये नई किताबें हैं। ये नई किताबें हैं, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, सब्जेक्ट एंड ये दोनों मिलकर प्रेडिकेट, हाँ ठीक है। हाँ हाँ ये हाँ कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस में क्या होगा, है या है जरूर रहेगा। हाज़िही हाँ, ठीक कुतुबुन जदीदतुन, ये नई किताबें हैं। और है, वाहिद रहेगा तो ये नई किताब है, ठीक ठीक है। ठीक है ये ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस की पहचान है कि है या है रहेगा। और जो सेकंड पार्ट, इनकम्प्लीट, हाँ, और जो इनकम्प्लीट रहेगा उसमें है या है नहीं रहेगा उर्दू ठीक तर्जुमे है। में। अब जी, सेकंड पार्ट भी सब बता दीजिए। ही मिम बेल्जिका, ये हाँ बेल्जियम से है या फिर बेल्जियम का है। हाँ, ठीक है ठीक है। दैट इज फ्रॉम बेल्जियम, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर वाले जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, जी सिंगुलर नंबर वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, जी उसमें उसमें जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का सेकंड पार्ट, वो जी, उसमें लिखा हुआ मीन बेल्जियम, बेल्जियम हुम का, हुम, हुम, हाँ, हुम मिम बेल्जिका, दे आर फ्रॉम नहीं बेल्जियम। वो तो हो गया, वो तो हो गया, अलीफ वाला हो गया। ब नंबर का है ना, दोनों सेंटेंस सिंगुलर जी और प्लूरल, इन्हीं में बात करेंगे अपन। जो सिंगुलर वाला है उसी की बात कर रहा हूँ। जी जी, वाहिद है, हुआ होगा मुजक्कर में, और मुअन्नस हाँ, में हिया होगा। ये मुअन्नस क्यों अच्छा, क्यों इस्तेमाल किया, मैंने बताया। मैं दो बात बताई। क्या, हाँ एक एक देखे किताबुन देखें, और एक हाँ, तालिबुन देखें, इन दोनों को समझें। तालिबुन जो है अक्ल वाली चीज है ना, ठीक है, हाँ इंटेलिजेंट थिंग है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। हाँ तालिबुन हैविंग इंटेलिजेंट, एंड हाँ किताबुन हैविंग नॉन इंटेलिजेंट, ठीक है। हाँ दोनों में ये फर्क है। तो जो इंटेलिजेंट होता है, जिसके अंदर अक्ल होती है, उसकी जो जमा होती है उसको हम हाउलाई से ट्रीट करेंगे, हाउलाई लगाएंगे, उसे हाँ, नॉर्मल नॉर्मल प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक लेकिन है, जो गैर आकिल की जमा, लाइक किताबुन की जमा कुतुबुन, किताब क्या है, नॉन इंटेलिजेंट थिंग है, हाँ उसमें हाँ, अक्ल नहीं होता। तो गैर अक्ल वाली चीजों का जो जमा होती है, ठीक है, उसे ट्रीट किया जाता है वाहिद मुअन्नस के तौर पे, ठीक है। यही वजह है कि उसके साथ जो इसमें इशारा लगाएंगे वो भी वाहिद मुअन्नस, और जो सिफत लगाएंगे एडजेक्टिव वो भी वाहिद मुअन्नस। आई सिंगुलर बात समझ में। सिंगुलर में तो फिर हुआ लगा, नहीं हुआ लगा है, हाँ, अच्छा। और नीचे आ, नीचे ही आ, लगा है इसके। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, हिया लगा क्यों लगा, क्योंकि हाँ ये जो कुतुबुन है, किताबुन की जमा है, ठीक है। हाँ, नॉन इंटेलिजेंट प्लूरल है, अच्छा और अच्छा नॉन इंटेलिजेंट प्लूरल जो होता है ट्रीट होता है एज ए सिंगुलर फेमिनिन नाउन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये किसके लिए आता है, हिया सिंगुलर फेमिनिन नाउन के मुअन्नस लिए के लिए, आता है ना, आता है हाँ ना। हाँ तो अभी तो मैंने हाँ, बताया, अच्छा ये अच्छा, अगरचे जमा ठीक है है ठीक है मगर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, दर्जे में ठीक है है। ठीक, ठीक है जी, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए, हव्विल मुब्तदा फी कुल्ल मिनल जुमलिल आतिया इला जमइन, कन्वर्ट दिस सब्जेक्ट, ठीक है। हव्विल, कन्वर्ट, अल मुब्तदा, सब्जेक्ट, convert the subject in each of the following sentences to plural, ठीक है। जमा में चेंज करना है, सब्जेक्टों को, सब्जेक्ट वाहिद है उसको जमा में बदलना है। लाइक मिसाल, हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस, इसकी जमा जो होगी हाजिही बुयूतुन, हाजिही बुयूतुन, ये घर हैं। तो देखिए, घर की जमा, ये घर क्या है, नॉन इंटेलिजेंट थिंग है, गैर अक्ल वाली चीज है ना। उसकी जमा क्या होता है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है। हाउलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे, क्लियर हुआ ना। ठीक है, लेकिन वलदुन के माना लड़का, वलदुन की जमा औलादुन, वहां पे हाजी औलादुन नहीं कह सकते, वहां पे हाउलाई कहना होगा, ठीक है। देखे, हाजा नजमुन, ये एक सितारा है, क्या कहेंगे यहाँ पे, हाजिही नुजूमुन, ये सितारे हैं। नंबर 2 में, हाजा दरसुन, ये एक सबक है। दुरूसुन, ये तमाम जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, नॉन इंटेलिजेंट प्लूरल है, ठीक है। ये तो ट्रीट करें किए जाएंगे किसके, कैसे, एज ए सिंगुलर फेमिनिन नॉन, ठीक है। इसी वजह से हाजा नहीं लगेगा, बल्कि हाजी ही लगेगा, हाजी ही, हाउलाई भी नहीं लगेगा, सभी के साथ हाजी ही लगेगा।
हाजा कलमुन, यह एक कलम है। अकलामुन, कलमुन की जमा है, ठीक है। हाजिही अकलामुन, ये चंद कलमें हैं। हाजा बाबुन, ये एक दरवाज़ा है। हाजिही अबवाबुन, ये चंद दरवाजे हैं। हाजा नहरुन, ये एक नहर है। हाजिही अनहारुन, ये चंद नहरें हैं। हाजा जबलुन, ये एक पहाड़ है। हाजिही जिबालुन, जबलुन की जमा जिबालुन, ये चंद पहाड़े हैं, ठीक है, चंद पहाड़ हैं। हाजा कल्बुन, ये एक कुत्ता है। हाजिही किलाबुन, कल्बुन की जमा किलाबुन, ये चंद कुत्ते हैं। नंबर 8, हाजा बहरुन, ये एक समंदर है। हाजिही बिहारुन, ठीक है, हाजी बहारुन या बिहारुन, ठीक है, बड़ी हा से है। ये चंद समंदर हैं। उसके बाद हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजिही कुतुबुन, ये चंद किताब है। हाजा हिमारुन, ये एक गधा है। हाजिही हुमुरुन, ये चंद गधे हैं, ठीक है। उसके बाद है हाजा सरीरुन, ये एक चारपाई है। हाजिही सुरुरुन, ये चंद चारपाई है। हाजा दफ्तरुन, ये एक नोटबुक है। हाजिही दफातिरु, ये चंद नोटबुक है। हाजा मकतबुन, ये एक मेज है, राइटिंग टेबल। हाजिही मकातिबु, ये चंद मेज है। हाजा फुंदुकुन, ये एक होटल है। हाजिही फनादिकु, ये चंद होटल है। हाजिही साअतुन, ये एक घड़ी है। हाजिही साअतुन, ये चंद घड़ियां हैं। देखें यहाँ पे क्या था, साअतुन ऑलरेडी क्या है, मुअन्नस है, इसलिए हाजी इस्तेमाल किया है ना। लेकिन यहाँ पे भी हाजा, यहाँ पे भी हाउलाई नहीं लगेगा, यहाँ पे भी हाजी ही लगेगा, वाहिद में भी और जमा में भी। हाजी साअतुन, ठीक है, ये इसलिए लगा क्योंकि ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है, ठीक है। हाजी साअतुन, जैसी प्रेडिकेट वैसा सब्जेक्ट लाएंगे। और ये इसलिए कि गैर अक्ल वाली चीजों की जमा है, इसकी तरफ हम क्या इशारा करेंगे, हाजी से इशारा करेंगे। देखिए हाजिही सय्यारतुन, ये एक कार है, ठीक है। सय्यारतुन क्या है, मुअन्नस नाम है, इसलिए हमने यहाँ पे हाजी इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी हाजी ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाजिही सय्यारातुन, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी, दोनों जगह हाजी ही इस्तेमाल करेंगे। हाजिही सय्यारातुन, ये चंद कार हैं। हाजिही ताइरतुन, ये एक ताइरतुन के माना हवाई जहाज होगा, ठीक है, ये एक हवाई जहाज है। और हाजिही ताइरातुन, ये चंद हवाई जहाज है। उसके बाद है जालिका नजमुन, वो एक सितारा है। देखें जिस तरह से हाजिही को हमने सीखा, ठीक है, वैसे ही बईद में, ये तो करीब वलन हो गया, हाजिही। बईद में क्या होगा, जालिका नजमुन है, यहाँ पे वो एक सितारा है, ठीक है। तो यहाँ पे नुजूमुन आएगा उसकी जमा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, उलाई का नहीं लगाएंगे, हाउलाई की तरह उलाई का नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे तिल का लगाएंगे, ठीक है। बाईद वाला जो सिंगुलर फेमिनिन है ना, वो लगाएंगे, तिल का नुजूमुन। ऐसे ही तिल का सय्यारतुन, वो एक कार है, तो यहाँ पे तिल का है, यहाँ पे भी तिल का इस्तेमाल करेंगे, तिल का सय्यारातुन। देखिए आगे नंबर 3, अशिर इलल अस्माइल आतिया, मुंदरजा झैल अस्मा की तरफ इशारा करो। बिस्मी इशारतिन बाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मुनासिबिन बाय एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक, मुनासिब के माने एप्रोप्रिएट। लिल करीब फॉर नियर, ठीक है, यानी हाजा हाजिही और हाउलाई, ये क्या है, इसमें इशारा करीब है, ठीक है। इन इन तीनों को इन खाली जगहों में एप्रोप्रिएटली आपको फिलअप करना है, भरना है। देखिए रजुलुन के माना मर्द, बताइए अब आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हाजा रजुलुन, ठीक है। दो में है रिजालुन, रजुलुन की जमा रिजालुन, क्या इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ उलाई रिजालुन, ये चंद मर्द हैं। उसके बाद कल्बुन के माना कुत्ता, क्या इस्तेमाल करेंगे,
हाजा हाँ बिल्कुल सही, हाजा कल्बुन, ठीक है। उसके बाद किलाबुन, कल्बुन की जमा क्या इस्तेमाल करेंगे? हाँ हा उलाई किलाबुन, ये चंद कुत्ते हैं। उसके बाद दुरूसुन, दर्स की जमा सबक, क्या इस्तेमाल करेंगे? हाजी जी बिल्कुल हाजी इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दर्स है, दर्स नॉन इंटेलिजेंट प्लूरल है, दुरूसुन जो है नॉन इंटेलिजेंट की प्लूरल है, तो इसे ट्रीट किया जाएगा एज ए सिंगुलर फेमिनिन, ठीक है। ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, के दर्जे में होता है, तो यहाँ हम हाजी ही इस्तेमाल करेंगे, हाजी ही दुरूसुन। हाउलाई दुरूसुन कभी भी नहीं कह सकते, ठीक है। हाजी ही दुरूसुन, ये चंद असबाक हैं, सबक की जमा असबाक। मुदर्रिसूना, चंद मुदर्रिस, बताएं। हाजी नहीं, हाउलाई आएगा ना, हाजी कैसे आ जाएगा? हाउलाई मुदर्रिसूना, इंटेलिजेंट प्लूरल है ना, हाँ हाँ जी सर जी आकिल की जमा है ना, आकिल और इंटेलिजेंट समझ रहे हैं ना जी जी। जी अखवाती, उख्तुन की जमा, मेरी बहनें, बताएं। हाउलाई, हाउलाई कैसे आएगा? क्योंकि ये प्लूरल है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाउलाई अखवाती, ठीक है। उसके बाद अक्ल, हाँ नहीं 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 नहीं, इसके साथ हाजी ही लगेगा ना, मुअन्नस है ना, मुअन्नस मुअन्नस है, हाजी अखवाती, बल्कि नहीं, हाउलाई दोनों के लिए है ना, जी मुज़क्कर और मुअन्नस, हाँ ठीक है, हाउलाई सही है। हाउलाई मैंने पहले बताया कि हाजा के मुकाबिल में भी है और हाजी ही के मुकाबिल में भी है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाउलाई खवाती, ठीक तो है। दीज आर माई सिस्टर्स। अकलामुन, कलमुन की जमा, बताएं। छोटा हाजी सा, हाजी अकलामुन, ठीक है। दीज आर पेन्स। उसके बाद किताबुन, ये वाहिद है, जमा नहीं है। हाजा, हाजा किताबुन, ये एक किताब है। सैयारातुन, सैयारतुन की जमा कार, हाजी हाजी सैयारतुन, ठीक है। नॉन इंटेलिजेंट प्लूरल है, गैर आकिल की जमा है, ठीक है। उसके बाद सैयारतुन, ये वाहिद है उसी की। जी हाजी हाजी सैयारतुन, ये एक कार है। हिमारुन, गधा, हाँ हाजा हिमारुन। उसके बाद कुतुबुन, किताब की जमा, जी बिल्कुल, हाजी ही कुतुबुन, पूरी बात बोलेंगे, ठीक है। हाजी ही कुतुबुन, ये चंद किताबें हैं, ठीक है। हुमुरुन, हिमारुन की जमा गधा, इनमें तो हाउलाई आ जाएगा। जी ठीक है, हाउलाई आ जाएगा, हाउलाई। हाउलाई हुमुरुन, ठीक है। तो फिर ये पीछे हिमारून में हाजी क्यों लगा सर? कहाँ पे कहाँ पे? ये पीछे वाले पेज पर सर। अच्छा तो ठीक कहा आपने, हाजी कहाँ ये पे? 10 नंबर पे सर हाजा हिमारून। हाजा हिमारुन, हाजी, हाँ ठीक है। देखिए, इंसान और नॉन इंसान की बात हो रही है यहाँ पे, सेंस के मामले में इंसान और नॉन इंसान की बात हो रही है, यहाँ पे इंटेलिजेंट उस सेंस में नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट की जो बात हो रही है, इंसान और गैर इंसान के बारे में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाजी ही होगा, हाजी ही हुमुरुन, सही है। आइनुन के माना आंख, हाजी सर। हाँ क्यों? ये सर वो 2 पार्ट वाला है बॉडी के, हाँ तो उसमें हाँ वो फीमेल बिल्कुल, है। हाँ ये फीमेल है, ठीक है, इसीलिए हाजी इस्तेमाल होगा, डबल पार्ट है, डबल मेंबर्स वाले हैं, पार्ट है। तबीबतुन के माने डॉक्टरनी, सिंगल है ये। हाजी तभी बच्चे। हाजी तबीबतुन, ये एक डॉक्टरनी है। तबीबातुन, उसी की जमा। हम्म। इसमें भी हाजी लगेगा नहीं सर, उलाय का तभी बात है। लाई का लगेगा, हाजी कैसे लग जाएगा? ये जी इंटेलिजेंट जी जी प्लूरल है, नॉन हाँ जी इंटेलिजेंट प्लूरल नहीं है। हम्म।
نمبر 4 میں اشیر الی الاسماء الآتیہ سیم ہے، وہی چیز ہے، باسم اشارت مناسب للبعید، یہاں پہ بعید کا استعمال کرنا، ذالکا تلکا اور اولائکا، ذالکا دیٹ اینڈ تلکا بھی دیٹ، اور اولائکا ان دونوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ذالکا کے لیے بھی جو جمع آئے گی اولائکا، اور تلکا کے لیے بھی جو جمع ہوگا اولائکا ہوگا، ٹھیک ہے، اولائکا کے معنی دوز، ناٹ دیز، دوز یعنی وہ، ٹھیک ہے، اسے بھی ایز اے سبجیکٹ آپ کو فل کرنا ہے۔ طالبن، بتائیں ذالکا تلکا اولائکا کیا لگے گا؟ ذالکا لگے گا۔ ہاں، ذالکا طالبن وہ ایک طالب علم ہے، دیٹ از دا اسٹوڈنٹ، طلابن طالبن کی جمع، انٹیلیجنٹ پلورل ہے، ٹھیک ہے، بتائیں اولائکا طلاب، اولائکا طلابن، دوز آر اسٹوڈنٹس، نجمن یہ واحد ہے، ستارہ، نجم، مذکر ہے، جی ذالکا نجم، ذالکا نجمن، جی، اس کے بعد پھر نجومن، دیکھیے یہ اگرچہ نجومن جو ہے مذکر ہے مگر نان انٹیلیجنٹ کی جمع ہے، اس لیے اسے کیا استعمال کریں گے، یہاں تلکا لگائیں گے، تلکا لگے گا، تلکا نجومن، تلکا نجم، ٹھیک ہے، تلکا نجومن وہ ستارے ہیں، بنتن بیٹی، بتائیں ہاں تلکا بنت، تلکا بنتن وہ تلکا ایک بنت، بیٹی ہے، ٹھیک ہے، بناتن اسی کی جمع ہے، بنات، اولائکا بنات، ہاں کیونکہ انٹیلیجنٹ کی پلورل ہے، ٹھیک ہے، اولائکا کے بناتن وہ بیٹیاں ہیں، دراجتن سائیکل، واحد ہے یہ، تلکا دراجت، صحیح، تلکا دراجتن وہ ایک سائیکل ہے، دیٹ از اے بائسکل، دراجاتن اسی کی جمع، نان انٹیلیجنٹ پلورل، تلکا آئے گا، ہاں تلکا آئے گا سر، تلکا دراجاتن، ٹھیک ہے، وہ بائسکل ہیں، اس کے بعد سریرن کے معنی چارپائی، واحد ہے، مذکر ہے، ذالکا، ذالک سریرن وہ ایک چارپائی ہے، دیٹ از اے بیڈ، ایک منٹ، ہاں دیکھیے، اس کے بعد ہے نمبر 10 میں سرورن، سریرن کی جمع چارپائی، بتائیں کیا ہوگا، نان انٹیلیجنٹ پلورل ہے، تلکا سرورن سر، تل کا سرورن وہ چارپائیاں ہیں، دجاجتن، دجاجتن کے معنی کیا ہوں گے، مرغی، دجاج، ہاں مرغی، تو تلکا دجا، نہیں یہ تو تل لائیو چیز ہے سر، کیا ہے، یہ تو پھر لائیو چیز ہے، تو پھر اس میں مطلب سر یہ لائیو ایسا نہیں ہے کیا؟ مطلب نہیں سمجھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، عقل والی بات بتا رہی ہے، جی تو یہ سنگولر ہے نا، جمع کی بات ہے نا وہاں پہ، اچھا تلکا انٹیلیجنٹ پلورل، تلکا آئے گا، تلکا آئے گا، ہاں وہ بات جو ہے جمع میں ہے، انٹیلیجنٹ پلورل اور نان انٹیلیجنٹ پلورل، یہ تو سنگولر ہے، کیول جمع میں ہوتا ہے وہ، ہاں، تل کا دجاجتن وہ مرغیاں، وہ ایک مرغی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد مدرستن وہ ایک استانی ہے، تل کا لگے گا، ہاں تلکا، مدرساتن اسی کی جمع، اس میں ہاؤ لائے لگے گا، ہاں ہاؤلائی مدرساتن یہ استانیاں ہیں، حاجن، حاجن کے معنی میل پلگرم، مرد حاجی، ذالکا، ذالک، ہاں ذالک حاجن، جالے گا، دیٹ از اے پلگرم، پلگرم وہ ایک حاجی ہے، اس کے بعد اسی کی جمع حجاجن، انٹیلیجنٹ پلورل ہے، تو ہاؤ لائے سر، ہاں ہاؤلائی یا پھر اولائی کا ہے نا، یہی استعمال ہو سکتا ہے، اولائی کا حجاجن وہ حاجی ہیں، وہ حاجی لوگ ہیں، مسجدن، حاضا یا پھر ذالکا، ذالکا مسجد، جالے گا، سیارتن کی جمع سیاراتن، نان انٹیلیجنٹ پلورل، تلکا لگے گا، تل کا سیاراتن وہ کار ہیں، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، دیکھیے نمبر 1 اسماء الاشارۃ للقریب، میں نے بتایا ہے ڈیمونسٹریٹو پرونون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قریب کے لیے اور ایک بعید کے لیے، ڈیمونسٹریٹو پرونون فار نیئر اینڈ فار فار، ان میں سے فار انٹیلیجنٹ اینڈ فار
नॉन इंटेलिजेंट, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर हैविंग इंटेलिजेंट, एंड नंबर 2 डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फार हैविंग नॉन इंटेलिजेंट। ठीक है, लेकिन दोनों में आकिल लिखा हुआ है, ये आकिल है नहीं, ऊपर में दोनों कॉलम जो ये जो है दोनों आकिल है, नीचे में दोनों गैर आकिल है। ठीक है, यहाँ देखिए हाजा तालिबुन है ना, हाजा तालिबुन, ये हाजा क्या है, इसमें इशारा करीब है। ठीक है, इसकी मुअन्नस क्या है, हाजिही है, ये भी इसमें इशारा करीब है। हाजा तालिबुन, ये तालिबुन क्या है, आकिल है ना, अक्ल वाला है ना। तालिबतुन क्या है, अक्ल वाला है ना, इंटेलिजेंट है ना। ठीक है, इसकी जमा जो है हाउलाई तुल्लाबुन, इसकी जमा के साथ हम हाउलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो जमा होती है आमतौर इसकी जो जमा होती है कॉमनली ट्रीट किया जाता है, जनरल ट्रीट होता है। ठीक है, दोनों में देख लीजिए, हाजिही की जमा हाउलाई और हाजा की जमा भी हाउलाई और हाजिही की जमा भी हाउलाई है ना। ठीक है, अब ये फार वाला में देख लीजिए, बईद वाला में जालिका तालिबुन और तिल का तालिबतुन, ये जालिका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फार, यानी इसमें इशारा बईद। ठीक है, और इसमें इशारा बईद दोनों, और हैविंग इंटेलिजेंट दोनों के पास अक्ल है ना। इसकी जो जमा होगी तुल्लाबुन, इसकी जो जमा होगी मुअन्नस में तालिबातुन, तो ये कॉमनली ट्रीट किया जाता है, जनरल। ठीक है, प्लूरल के साथ जो होता है, तो उलाई का इसका आएगा, क्योंकि जमा इसकी जो आती है जालिका की वो उलाई का, और तिलका की जमा भी उलाई का, तो ये कॉमनली ट्रीट हुआ। ठीक है, लेकिन अब नीचे वाले कॉलम में देखिए क्या फर्क है। देखें, नंबर 3 अस्माउल इशारती लिल करीब, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर हैविंग नॉन इंटेलिजेंट, गैर आकिल हैविंग नॉन इंटेलिजेंट। और 4th में है अस्माउल इशारती लिल बईद, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फार हैविंग नॉन इंटेलिजेंट, दोनों नॉन इंटेलिजेंट है ये दोनों कॉलम। देखिए हाजा बैतुन, ये हाजा क्या है, इसमें इशारा करीब है, ये ऊपर वाला लाइन हो गया क्लियर, और गैर आकिल है यानी नॉन इंटेलिजेंट है। बैतुन क्या है, हाउस, गैर आकिल है, हो गया ये दोनों चीज। नीचे देखिए हाजिही क्या है, अस्मा इशारा लिल करीब है। सैयारतुन क्या है, गैर आकिल है यानी नॉन इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब इसकी जो जमा आती है बुयूतुन। ठीक है, तो ये गैर आकिल की जमा है, और गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, ट्रीट किया जाता है एज ए सिंगुलर फेमिनिन। ठीक है, तो ये किसके लिए आता है, हाजिही सिंगुलर फेमिनिन के लिए आता है ना। लेकिन यहाँ पे जमा होने की बावजूद भी बुयूतुन के साथ हाजिही लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसा कि वाहिद मुअन्नस है ना, क्लियर हुआ ना। ठीक है, नीचे भी देखिए हाजी सैयारातुन, ये अगरचे जमा है मगर किसकी जमा है, नॉन इंटेलिजेंट नॉन की जमा है, और ये ट्रीट किया जाता है एज ए सिंगुलर फेमिनिन, इसी वजह से हाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं करीब में। अब बईद में देख लीजिए, जाली का बैतुन, जाली का इसमें इशारा बईद है, तिल का भी इसमें इशारा बईद है, मुजक्कर मुअन्नस का फर्क है ऊपर नीचे। ठीक है, बैतुन नॉन इंटेलिजेंट, सैयारतुन कार नॉन इंटेलिजेंट है ना। इसकी जमा बुयूतुन, तो गैर अक्ल वाले की जमा ट्रीट किया जाता है एज ए सिंगुलर फेमिनिन, इसी वजह से हम तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बईद में सिंगुलर फेमिनिन के लिए क्या आता है, तिल का आता है। ठीक है, तिल का बुयूतुन, हाँ उलाई नहीं कह सकते, उलाई का नहीं कह सकते, ऐसे ही जमा में तिल का सैयारातुन, वो चंद कार हैं। क्लियर हुआ ना। कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल आसान रहेगा। चलें, लेसन कंप्लीट हो गया। मैं डर डर के पढ़ा रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। चलिए पूछिए, कोई सवाल अगर हो तो, कहीं पे दोहराने की जरूरत हो तो दोहरा दूंगा। शुरू से देखिए, पेज नंबर 92, कोई लाइन कोई पॉइंट। तो सर जैसा आपने बताया कि नॉन इंटेलिजेंट चीजों के लिए फीमेल ये हाजे यूज कर रहे हैं, तो मतलब सर ये सेकंड पेज पर आपने हाजा हिमारों में हाजे ही लगाया, तो फिर ये तो जानवर है ना सर। तो इसको भी मतलब इसी में गिनेंगे क्या, जैसे बेड और दफ्तर और मकतब में।
ہاں یہی ہے, ایسا ہی ہے کچھ. یعنی یہاں پہ جو انٹیلیجنٹ اور نان انٹیلیجنٹ کہا جا رہا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, انسان اور غیر انسان کے سینس میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, مطلب اینیمل بھی اسی میں آئیں گے سر؟ ہاں اینیمل بھی اسی میں آئیں گے. ٹھیک ہے سر. نہیں ایسا بھی ہو سکتا سر, کیول یہی ایک جانور ایسا ہے جس کو مطلب نان انٹیلیجنٹ میں گن سکتے ہیں, ایسا کچھ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. سبھی انسان اور غیر انسان میں تقسیم کیا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انٹیلیجنٹ اس میں بھی ہوتا ہے مگر انسان کی طرح نہیں ہوتا ہے, اسی لیے انسان کو انسان رکھا, باقی کو ویسے بھی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کو ہی کیا کہتے ہیں سب سے بہتر انٹیلیجنٹ دیا گیا ہے. سب سے بہتر انٹیلیجنٹ جو ہے انسان کو ہی دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے انسان سے حساب کتاب ہونا ہے, اور باقی جانور اینیملس وغیرہ سے کوئی حساب کتاب نہیں. بس دنیا گزر گئی کسی صورت سے, بس ختم معاملہ تو ہم لوگوں کا ہے. ہم لوگوں کو توبہ استغفار کرنا ہے, رونا دھونا جو کرنا ہے ہم لوگوں کو کرنا ہے. اور کچھ یہ کلیئر ہوا نا, یہ انٹیلیجنٹ کی جمع اور نان انٹیلیجنٹ کی جمع ہاں جی سر. کوئی مشکل چیز نہیں ہے, آسان ہی ہے. آج کتنے تاریخ ہو گیا, 9 نا, نہیں 8 ہے, کل 9, پرسوں ٹیسٹ لیں گے. پرسوں کون دن ہے؟ سنیچر ہے. چلیے چھٹی کا دن رہے گا, اسی دن آپ لوگوں کو ٹیسٹ ہو جائے گا. تو کس وقت سر ٹیسٹ لیں؟ ٹیسٹ کس وقت لیں؟ ہم بھیج دیں گے, بس لکھ کر کے آپ کو بھیج دینا ہے. 1 گھنٹہ بہت میکسیمم, یا 1 گھنٹہ سے زیادہ, 1.5 گھنٹہ بہت ہے. 20 نمبر کا ہے, ہم کو لگتا ہے آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا, لیکن 1 گھنٹہ بھی رہے گا تو کوئی دقت نہیں. سر یہ مفتاح العربیہ پوری بک میں سے آپ پوچھیں گے نا؟ ہاں بہت کامن چیز پوچھیں گے. ہاں جی جی. سر جس بک کا آپ ٹیسٹ لے گئے وہ میرے پاس ہے نا PDF سے ڈیلیٹ ہو گئے ایکچولی, سو آپ جی وہ کر سکتے ہیں بھیج دیں گے, جی بھیج دیں گے. ویسے یاد رکھیے کہ بک سے بہت ہی نارمل چیز پوچھا ہے, بہت ہی نارمل چیز جو نہیں ہم. سر, پھر بھی میں ریوائز کر لوں گا ایک ہاں بار. ٹھیک ہے, میں بھیج دوں گا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں جو سمجھانے کے طور پہ جو کچھ سمجھاتا ہوں, جیسے انٹیلیجنٹ کی جمع, نان انٹیلیجنٹ کی جمع, ان میں سے ہی پوچھوں گا. یہ نہیں ہے کہ یہی پوچھوں گا. ٹھیک ہے, سمجھانے کے دوران میں نے جو بھی سمجھایا ہے نارمل سی بات, ان سب سے میں سوال پوچھا ہوں. ٹھیک ہے سر. اور کچھ 7-8 جملے چھوٹے چھوٹے, ہاضا حاضی والا, بس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آج بھیج دیں گے. اور اتفاق سے میرا بھی ٹیسٹ ہونے والا ہے عربی کا. میرا 2 سال پورنے والا ہے عربک ڈپلوما کا, تو میرا بھی ٹیسٹ ہونے والا, میں بھی اس کی تیاری کر رہا ہوں. چلیے آپ لوگوں کی دعا رہی تو بہتر ہوگا. سر آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں دیوبند سے, دیوبند کے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے کر رہے ہیں. جی سر. جی آن لائن ہی ہم بھی کر رہے ہیں. ہم 2 سال سے اوپر کلاس کیا ہے میں نے. تو آپ کا تو انشاءاللہ کلیئر ہی ہو جائے گا. ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا, ٹیسٹ ہونے والا اسی مہینے میں. بات ہوئی ہے استاد سے. ہم لوگ کو بھی سر تھوڑا بہت کروا دیجیے کہ ہم لوگ بھی تھوڑا اچھے سے قرآن ایک دم میننگ سے پڑھ پائے بس. انشاءاللہ ضرور, ایسا کچھ نہیں ہے, بس یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جتنا میں ابھی تک پڑھایا ہوں اس کو ریویژن کیجیے. اور جی یہ 4تھا مہینہ چل رہا ہے. یہ کتاب کمپلیٹ ہوتے ہوتے, یعنی 10 مئی سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور 10 ستمبر کو 4 مہینہ کمپلیٹ ہو جائے گا, ہے نا. اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ 15 ستمبر تک یہ بک کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد صرف ریویژن چلے گا, یعنی 20-25 دن تک بس کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. میں نے 5 مہینہ کر رکھا تھا, 5 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ایک ایکسٹینشن کے طور پہ ایک وہ والی کتاب جو ہے انگلش, اردو, عربی, اس کو بھی چند سبق 8-10 لیسن پڑھا دوں گا انشاءاللہ. جی سر. تو بہتر رہے گا.
मुझे भी इन्हीं सब किताबों की तैयारी करनी है। दुरूसुल लुगत जो पढ़ा रहा हूँ, इससे भी मेरा टेस्ट होना है, मिनहाजुल अरबिया से भी टेस्ट होना है, और मिफ्ताहुल अरबिया से भी टेस्ट होना है। ये सब किताबें हैं। एक टेस्ट मैंने दिया था 2020 में, तो फर्स्ट पोजीशन आया था मेरा। जी सर। चलिए, दुआ की दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगे रहिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखिएगा, बहुत आगे तक जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये ना सोचिएगा कि हमारा बीए में या एमए में अरबी पेपर नहीं था तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, हम मास्टर डिग्री इससे नहीं कर सकते हैं, हम इससे पीएचडी नहीं कर सकते हैं। मेरा खुद भी ना तो बीए में ना तो एमए में किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा पेपर भी अरबी नहीं है। ठीक है, मैं साइड से अरबी पढ़ रहा हूँ और ऐसे ही पढ़ता चला जाऊंगा आगे तक इंशाल्लाह। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बीए में पेपर है या नहीं है, एमए में है या नहीं है। नहीं है तब भी हम पढ़ेंगे, ये ऐसी जबान है। और पढ़िएगा, खुद मजा आएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ चीज़ें बताऊंगा जो इंशाल्लाह आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। सर शुरू से क्लास नहीं अटेंड की ना सर, तो इसलिए ज्यादा समझ में नहीं आया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आप रिवीजन कीजिए, जो प्रॉब्लम होगा हमसे पूछिए, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, जैसे भी पूछ सकते हैं, लिख के रख लीजिए, क्लास में पूछ लीजिए बाद में। ठीक है, और डिक्शनरी को पढ़ा कीजिए। डिक्शनरी मैंने दिया था। जितनी किताबें हैं, ये छोटी छोटी किताबें, इसे आपको खरीदना ही पड़ेगा, तभी फायदा होगा। पीडीएफ से पढ़ाई बहुत हद तक नहीं हो पाता है। सर बहुत जो आपने एड्रेस दिया था तो उससे तो मंगवाया है सर, ये सब बुक जो आपने लिखी थी, जी, तो 4-5 दिन में आ गई सर। हाँ आ गई ना, तो ठीक है। जी सर। और ऐसे ही जो भी किताब पढ़ते जाएं आगे, किसी और से भी अगर पढ़ें तो जो किताब भी रहे वो उसे मंगा लीजिए। सबसे पहला सजेशन यही है। किताब नहीं रहेगा, पीडीएफ में नहीं पढ़ पाएंगे। पीडीएफ में बोर होता है, थोड़ा सा आदमी खोलता है, उसके बाद बिजी हो जाता है मोबाइल में। और हार्ड कॉपी में क्या होता है कि आदमी जब खोलता है तो पढ़ता है, कुछ सीखता है। बेहतर वही है। ठीक है, लगे रहिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को क्या क्या कहते हैं, हर चीज़ के यानी इससे हमारा बिजनेस का फ़ायदा हो या ना हो, डिग्री का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वो फ़ायदा है जो हम गुमान नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी सारी मजहबी किताबें जो है, इस्लामिक लिटरेचर जो भी है, वो आपको अरबी में मिलेगी, उर्दू में मिलेगी, फ़ारसी में मिलेगी। कौन पढ़ेगा? पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सीखते रहें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।